in my last video we will discuss about a state conductor, circular conductor, and a solenoid. And you know the solenoid is behaves like a bar magnet. So Nupur, can I write the characteristics of a solenoid or not? Can I write the characteristics? Okay, we can write the characteristics of a solenoid. So बच्चे this solenoid, wait for a minute, wait बच्चे 1 minute. बच्चे you can repeat the characteristics of a solenoid. Nupur, you can repeat from your copy, repeat the characteristics of the solenoid, please. Hurry Yes, up. sir. Yes बच्चे. When an electric current flows through a solenoid, a magnetic field is set up around the solenoid, similar to the magnetic field of a bar magnet. धीरे Magnetic धीरे field. धीरे धीरे बच्चे पॉइंट मेंशन करना है और फिर बोलना है. यस यस. Magnetic field due to solenoid carrying current. One end acts as north pole and other end acts as a south pole. Right. Next. If current is clockwise, then coil is seen end on, then that end of solenoid acts as south pole. On the other hand, if the current flows in anti-clockwise direction, then the coil is seen end on, then that end of solenoid acts as north pole. If it flows in anti-clockwise direction, then face of loop behaves as north pole. Yes, Vachi. Yes, Vachi. This is the wait. This is the introduction of a solenoid. How to explain this solenoid? Then, Vachi, you can write the next topic, that is depend upon a solenoid. Write the characteristics of a Write the heading, characteristics of magnetic field due to a characteristics of magnetic field due to a current carrying solenoid due to a current carrying solenoid. हाँ जी बच्चे, तो आप बोर्ड भी देख पा रहे हैं, तो यू कैन सी ऑन द बोर्ड डायरेक्टली हियर. जिसको पूछना होगा बच्चे कुछ रेज योर हैंड. हमने ये करा था कि दिस इज ए solenoid, it's your solenoid, and this is your a battery, this is your positive terminal, it's your negative terminal, here is a key. और मैंने एक बच्चे सर्कल में ऐसे एक टर्म रिप्रेजेंट करी थी. अगर मैं यहाँ पे n सिमिलर लाइक दैट, अगर n बनाता हूं और यहाँ पे बच्चे s बनाता हूं, यहाँ पे s बनाऊंगा, ये देखो इधर s mean साउथ पोल, s mean साउथ पोल and current flowing in the clockwise direction. clockwise बच्चे अगर करंट जो है, लिसन केयरफुली, अगर करंट जो है, ये देखो इधर, इस केस में इफ वी पुट ऑन द की, नाउ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड दिस इज ए द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इट मीन दिस एंड इज ए साउथ पोल and this end is a north pole. You can understand the concept. This end is a north pole and wait for a minute. ये बच्चे बहुत बच्चे लेट आते हैं, बट बच्चे जल्दी आया करो. बच्चे जल्दी आया करो भाई,
ये अब लड़का आया, पता नहीं क्या नाम है इसका, दीक्षित। अब फर्स्ट क्लास है इसकी आज। यस बच्चे, ये देखो इधर मैंने ये बोला, इफ इट्स ए एस, एस मीन द करंट फ्लोइंग इन, कौन सी डायरेक्शन में बच्चे करंट फ्लो कर रहा है, एस बनाया हुआ है मैंने, एस बनाया हुआ है, इट मीन द करंट फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखो इधर करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो दिस एंड एक्ट एज ए साउथ पोल, और दूसरा एंड जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर बच्चे इफ वी चेंज, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे बना रहा हूं, ये देखो, अगर something like that, this is your negative terminal, this is your positive terminal, here is a key, if current flowing in the anti-clockwise direction, दूसरी डायग्राम में आप देख पा रहे हैं करंट फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा दिस एंड एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। तो बच्चे हमने ये भी बताया था कि इस सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दैट इज पैरेलल टू ईच अदर, मीन दैट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन दिस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड आर रिमेन कांस्टेंट इन द सर्किट। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बच्चे इस केस में कैसे फ्लो करेंगी, यहां से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। पहले भी बताया था इट इज लाइक ए बार मैग्नेट, जैसे हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था वैसे ही ये बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगी। एंड सिमिलरली इन दैट केस ऐसे इट इज सिमिलर टू बार मैग्नेट, ये देखो ऐसे। और अगर हम बात करें कि आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, and inside the magnet the magnetic field line from south pole to north pole, it is similar to bar magnet. So बच्चे you can write the first characteristics, write the first characteristics, लिखेंगे first point, magnetic field inside a long solenoid, magnetic field inside a long solenoid is uniform, is uniform। देख पा रहे हैं बच्चे आप, इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, इट मीन इट इज यूनिफॉर्म। हाँ जी, साथ में लिखना है इसी के साथ, सेम एट ऑल पॉइंट एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज represented, this magnetic field is represented by a straight magnetic field line, by a straight magnetic field line parallel and very close to each other, parallel and very close to each other। ये देखो बच्चे आप देख पा रहे हैं ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है और इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आगे सेकंड पॉइंट बच्चे, मूव ऑन द सेकंड पॉइंट, लिखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड inside a long solenoid decrease as we move towards the ends of the solenoid, because magnetic field line near the end
near the end of the solenoid start spreading out, start spreading out। अब बच्चे देखो इधर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये देखो यहाँ पे बहुत क्लोज है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही एंड से बाहर जा रही है तो ये लाइन एक दूसरे के दूर हो रही है, स्प्रेड हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। यहाँ पे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक है। आगे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, आगे बच्चे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड राइट, magnetic field line outside the solenoid, magnetic field line outside the solenoid is non-uniform, is non-uniform and weak, non-uniform and weak। ये देख रहे हैं बच्चे आप, सोलेनॉइड के बाहर, आउटसाइड द सोलेनॉइड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये नॉन यूनिफॉर्म है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। पहले भी बताया मैंने, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है और ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आउटसाइड द मैग्नेट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जा रही है, सेपरेट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है बच्चे। मूव ऑन द फोर्थ पॉइंट, magnetic field line inside the solenoid, magnetic field line inside the solenoid are from south pole to north pole, south pole to north pole and outside the solenoid, outside the solenoid these line of force are, these line of force are north pole to south pole, north pole to south pole। ये देखो बच्चे, आउटसाइड द मैग्नेट मैंने बताया नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इनसाइड बताया मैंने साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सिमिलर लाइक टू बार मैग्नेट, similar like to bar magnet। last point बच्चे, magnetic field of a solenoid, magnetic field of a solenoid resembles the magnetic field of a bar magnet। ये जो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सोलेनॉइड की, इट इज सिमिलर टू बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट के बिल्कुल सिमिलर है, बार मैग्नेट के बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, हाँ जी बच्चे। यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको प्रॉपर्ली ना, इसलिए मैंने सर्कल कर। हाँ जी बच्चे, आगे लिखना है यूज ऑफ ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का यूज बच्चे हम कहाँ पे करते हैं? यूज ऑफ ए सोलेनॉइड, यूज ऑफ ए सोलेनॉइड लिखो, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड produced inside the solenoid, produced inside a solenoid is used to magnetize, is used to magnetize the rod of a magnetic material, the rod of a magnetic material like soft iron, like soft iron
when placed inside the solenoid, when placed inside the solenoid, this material, this sorry, this magnetized material, this magnetized material is called electromagnet, is called electromagnet. या बच्चे आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो ब्रैकेट में टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट। अब इसका आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं कि कहां पे यूज करा जाता है। ये मैंने मिटा दिया। हाँ जी बच्चे, ध्यान से देखना है। यहां पे बच्चे मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, सॉफ्ट आयरन कोर, इट्स ए सॉफ्ट आयरन कोर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि व्हाट इज ए सॉफ्ट आयरन कोर, तो आपने याद रखना है एक ऐसा आयरन जिसमें विच हैज लो कार्बन कंटेंट। याद रखना है सॉफ्ट आयरन किसको बोलते हैं, द आयरन दैट हैज लो कार्बन कंटेंट and easily magnetized and demagnetized। सॉफ्ट आयरन किसको बोलते हैं बच्चे, जिसमें लो कार्बन कंटेंट हो, लो कार्बन कंटेंट हो और वो इजिली मैग्नेटाइज्ड हो जाए और डीमैग्नेटाइज्ड हो जाए। अब बच्चे क्या करा, देखो इधर मैंने इसके ऊपर, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर मैंने सॉलिनॉइड को ऐसे बाइंड अप कर दिया। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ वायर को बाइंड अप कर दिया ऐसे, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करी, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे एक की लगा दी, और इसके सराउंडिंग बच्चे यहाँ पे आयरन फिलिंग पड़ी हुई है, लोहे का पाउडर पड़ा हुआ है यहाँ पे बहुत सारा इसके सराउंडिंग। अब जब तक ये की ऑफ है, लिसन केयरफुली, जब तक ये की ऑफ है तो बच्चे ये आयरन पाउडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, मैग्नेटाइज नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने इसमें की को ऑन कर दिया, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बच्चे इसने इस आयरन को मैग्नेटाइज अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ये सारा ही मैग्नेट बन गया, मैग्नेटाइज हो गया। जब मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा तो जो आयरन इसने अट्रैक्ट करा था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, इसलिए हम इसको टेम्परेरी मैग्नेट बोल देते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट मीन जब करंट फ्लो करेगा तब तो मैग्नेटाइज्ड है, जब मैं करंट बंद कर दूंगा तो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट बच्चे? मैंने ये बोला कि जब मैं करंट को ऑन करूंगा तो ये बच्चे आयरन फिलिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, और जब मैं इसका स्विच ऑफ कर दूंगा तो ये बच्चे डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, जो आयरन फिलिंग इसने अट्रैक्ट करी थी उसको रिमूव कर देगा। मीन इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट। इसको बोलना है हमने टेम्परेरी मैग्नेट और ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन बच्चे। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ये इसका यूज है बच्चे कि सोलेनॉइड का यूज कहां पे करा जाता है, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं या सोलेनॉइड का यूज करते हैं। आगे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक लिखना है आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बच्चे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलो बच्चे वेट 1 मिनट। चलो यही कर लेते हैं, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेट। लिखेंगे ए लॉन्ग टाइटली इलेक्ट्रोमैग्नेट हेडिंग है बच्चे। आगे आपको क्वेश्चन ये भी आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट
या टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है। अब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट आपको बता दिया कि जब करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, जब मैं करंट को बंद कर दूंगा तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, जिसमें कार्बन का कंटेंट कम है, जो मैग्नेटाइज भी करता है और डीमैग्नेटाइज भी करता है। तो बच्चे टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन टेम्परेरी मैग्नेट, it's not a permanent magnet। लिखेंगे a long tightly bound, WOUND, a long tightly bound helical, helical इसको बोलते हैं बच्चे helical, a long tightly bound helical coil of metallic wire, of metallic wire containing soft iron, containing soft iron in its core, in its core is called, in its core is called a electromagnet, is called a electromagnet। नेक्स्ट लाइन में लिखो बच्चे और करके लिखेंगे और when a soft iron, when a soft iron bar, soft iron bar, BAR bar is placed inside a solenoid, is placed inside a solenoid carrying current, carrying current, it become a magnet, it become a magnet as long as current flow through the solenoid, current flow through the solenoid, it is also called electromagnet, it is also called electromagnet। अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये देखिए कि मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, इट्स ए सॉफ्ट आयरन कोर व्हिच हैज लो कंटेंट ऑफ कार्बन, और इसके ऊपर मैंने बच्चे एक सॉलिनॉइड को बाइंड अप करा और इसके साथ एक बैटरी और एक की को अटैच कर, और इसके सराउंडिंग आयरन का पाउडर मैंने स्प्रिंकल करा। जब तक की ऑफ है तो बच्चे वो आयरन पाउडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे ही की को ऑन करूंगा देन करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ दिस आयरन फिलिंग कैन बी अट्रैक्ट ईच अदर, आयरन फिलिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये पूरा ही सब्सटेंस जो है ये मैग्नेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। जब बच्चे मैं करंट बंद कर दूंगा तो ये आयरन फिलिंग को रिमूव कर देगा, मीन ये पहले मैग्नेटाइज हो रहा है, जब मैं करंट को बंद कर रहा हूं तो ये डीमैग्नेटाइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने दो डेफिनेशन लिखवाई, जो आपको इजी लगती है बच्चे वो आप लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगती है वो आप लिख सकते हैं। आगे बच्चे, आगे हेडिंग दो, क्वेश्चन लिखो, हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, how to increase the strength of electromagnet, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ मीन पावर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट बच्चे, फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड। ये देखो बच्चे दो डायग्राम बना रहा हूं, ये दो डायग्राम बना रहा हूं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इट्स से की यहाँ पे ये सॉलिनॉइड है। इस केस में मैंने 2 एम्पियर का करंट दिया और इस केस में मैंने 20 एम्पियर का करंट दिया। तो बच्चे कौन सा मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये 20 वाला, जिसमें जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। इसमें करंट कम है, मैग्नेटिज्म भी कम है। जैसे ही मैंने करंट को इंक्रीज कर दिया,
इसका बच्चे मैग्नेटिज्म जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड बच्चे, सेकंड, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स मींस, ये देखो इधर एक मैंने ये लगाया हुआ है और इसमें मैंने 2 या 3 ही टर्न्स लगाई हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव और ये की। और सिमिलरली ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिज्म भी ज्यादा होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, जो वायर को मैंने हेलिकल फॉर्म में लेके आया हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इसमें बच्चे मैग्नेटिज्म भी कम रहेगी। अगर मैं 2 पॉइंट बताए बच्चे, हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक तो मैंने बताया इफ वी इंक्रीज द करंट इन द सर्किट नाउ मैग्नेटिज्म कैन बी इंक्रीज, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करूंगा देन मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीज। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में बच्चे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आगे लिखेंगे यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, या चलो एक एक्टिविटी बताता हूं बच्चे इसकी, एक आपको इसकी एक एक्टिविटी बताता हूं। चलो लिखवा भी देता हूं इसकी एक्टिविटी, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा बच्चे। लिखवा दो कि ऐसे समझा दो, ऐसे समझा दो। यस बच्चे, एवलीन, हाँ जी बोलो बच्चे। So we have done this activity in class 8. पढ़ी हुई है? We used the iron nail and we वेरी have गुड, बस बिल्कुल rounded the यस copper बच्चे, हाँ copper wire into it with Right, right. some different ones, one with 10 and one with 20, and then we tested it with the iron fittings. राइट बच्चे राइट, वही एक्टिविटी मैंने करवानी है, तो करवाने की जरूरत नहीं है, इट मींस करवाने का जरूरत नहीं है बच्चे। वेरी गुड, चलो Okay, sir. तो इसमें लिखेंगे बच्चे यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। फर्स्ट यूज लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड in electrical devices such as electrical devices such as electric trains, electric trains. Second point, for moving big objects, for moving big objects of iron, big object of iron from one place to another, from one place to another. Third point बच्चे, third point, for removing small iron splinter, for removing small iron splinter, splinter, splinter from an eye of a patient, for removing some iron splinter from an eye of a patient, पेशेंट की आई में से रिमूव करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करा जाता है बच्चे। ठीक है, तो ये था बच्चे। ऑल द स्टूडेंट ओपन योर कैमरा, जिनका कैमरा ऑफ है जल्दी से ऑन करो अपना कैमरा। यस बच्चे, यस नूपुर। Sir, I read it somewhere that this electromagnet is also used in बच्चे MRI machines. क्रैकिंग, हाँ जी बोलो। Sir, are they used in MRI machines also? यस बच्चे, यस बच्चे, हाँ जी। नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेट। आगे सेकंड है बच्चे परमानेंट मैग्नेट। लिखो, इफ बी की, अभी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ बी की हार्ड स्टील इन प्लेस ऑफ, हार्ड स्टील इन प्लेस ऑफ सॉफ्ट आयरन in a solenoid, in a solenoid, and switch on the current for some time,
for some time, then hard steel convert into a magnet. Hard steel convert into a magnet. But when the current is switch off, but when the current is switch off, the hard steel does not lose its magnetism. Lose its magnetism. This means that hard steel convert into a permanent magnet. Hard steel convert into a permanent magnet. हाँ जी बच्चे, क्या बोला मैंने, ये देखो इधर, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब मैंने बात करी आपको कि परमानेंट मैग्नेट, इधर देखना है, परमानेंट मैग्नेट। तो बच्चे मैंने क्या बोला कि पहले हम यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते थे, सॉफ्ट आयरन यूज करते थे। जैसे ही करंट ऑन करते थे तो बच्चे ये मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेट बन जाता था, और जब हम स्विच ऑफ कर देते थे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाता था, ये डीमैग्नेटाइज हो जाता था। इधर देखना है बच्चे बोर्ड की तरफ। अब मैंने क्या करा कि जो आपने सॉफ्ट आयरन कोर लिया था उसकी जगह मैंने यहाँ पे एक हार्ड स्टील यूज कर दी, हार्ड स्टील यूज करी, और इसके ऊपर वायर को वाइंड अप करा ऐसे, एंड सिमिलरली कनेक्टेड विद ए बैटरी एंड ए की। सिमिलर, if we switch on the key, now current flowing in the conductor, इसमें करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो होने के कारण ये बच्चे मैग्नेट बन गए। ये क्या बन गया? मैग्नेट, या इसमें मैग्नेटिज्म आ गया। अब मैंने क्या करा, स्विच ऑफ कर दिया। अब जब मैं स्विच ऑफ कर दिया तो बच्चे ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, मतलब ये मैग्नेट ही बना रहेगा, ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। इट मींस hard steel can be converted in the form of a magnet. This is also called a permanent magnet. बच्चे डिफरेंस क्लियर हुआ? पहले मैंने क्या बोला कि टेम्परेरी मैग्नेट किसको बोलते हैं, कि मैंने एक सॉफ्ट आयरन लिया, सॉफ्ट आयरन कोर लिया। अब सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट, लेस अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट होता है। जब मैंने इस केस में स्विच ऑन करा और करंट फ्लो करना स्टार्ट करा तो ये बच्चे मैग्नेटाइज हो गया, ये मैग्नेट बन गया। जब मैंने स्विच ऑफ करा तो ये बच्चे डीमैग्नेटाइज, ये मैग्नेट नहीं रहा, ये डीमैग्नेटाइज हो गया। सिमिलरली अब मैंने क्या करा, जहां पे मैं सॉफ्ट आयरन यूज कर रहा था वहां उसकी जगह मैंने हार्ड स्टील यूज कर दी। जब हार्ड स्टील यूज करी और इसके ऊपर मैंने वायर को बाइंड अप करा सॉलिनॉइड की फॉर्म में, और नीचे बैटरी और की यूज करी, जैसे ही मैंने की को ऑन करा, करंट फ्लो करा इसमें, तो ये बच्चे पूरा मैग्नेट बन गया, मैग्नेटाइज हो गया। फिर मैंने स्विच ऑफ कर दिया कि मैं चेक करूंगा कि ये मैग्नेट है कि डीमैग्नेटाइज हो गया, तो ये बच्चे डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। मीन हार्ड स्टील कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ए मैग्नेट, ये बच्चे एक मैग्नेट बन गए। मीन इट इज ए परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट में क्या हो रहा था, जब करंट फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिज्म शो कर रहा था, जब मैं करंट बंद कर रहा था तो डीमैग्नेटाइज हो रहा था। इस केस में ऐसा नहीं होगा, जब हार्ड स्टील आप यूज करेंगे, करंट फ्लो करेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब मैं करंट बंद करूंगा तो बच्चे ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, इट डज नॉट बी ए डीमैग्नेटाइज, दैट इज कॉल्ड ए परमानेंट मैग्नेट। इसी को हम बच्चे परमानेंट मैग्नेट बोल देते हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट लिखना है कि कौन कौन से मटेरियल हैं जो हम इसमें यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट में। लिखो मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल लिखो। नॉट एवरी मटेरियल, नॉट एवरी मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मैग्नेट। हर एक मटेरियल को बच्चे हम मैग्नेट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉट एवरी मटेरियल
can be converted into a magnet. Certain material which are used to make which are used to make a permanent magnet are carbon steel को हम बच्चे परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट एंड टंगस्टन स्टील. आगे some alloy are alnico, alnico. इसको बोल देते हैं बच्चे, ब्रैकेट में लिख लो, इसको क्या बोल देते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे an alloy of aluminium, nickel, cobalt and iron. ये बच्चे क्या है, an alloy of aluminium, nickel, cobalt and iron. हाँ जी. आगे नेक्स्ट, ये था परमानेंट मैग्नेट. अब मैंने बता दिया परमानेंट मैग्नेट क्या है. परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट है जो मैग्नेटाइज्ड होता है बट डीमैग्नेटाइज नहीं होता है. एग्जांपल आप दे सकते हैं. अब आप आगे यूज लिखेंगे, यूज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट का क्या यूज है, यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट. बच्चे फर्स्ट पॉइंट, सॉरी पॉइंट में नहीं लिखना है, ऐसे डायरेक्टली लिख दो. परमानेंट मैग्नेट find use in microphone. देखना बच्चे, जो हेडफोन यूज करते हैं ना, लिसन, हेडफोन यूज करते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के साथ लगा के देखना है. ऐसे दोनों को एक दूसरे के साथ लगा के देखना क्या होता है. जो दो ईयरफोन है आपको एक दूसरे को लगा के देखना है, ऐसे क्या होता है. ठीक है, हाँ जी. तो यू कैन राइट permanent magnet find use in microphone, loudspeaker, ammeter, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, टू नोट डाउन द करंट, एमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, जो आपकी गाड़ी में लगा होता है, मोटरसाइकिल स्कूटर में स्पीडोमीटर, एंड इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एटसेट्रा, and electric clock etc. आगे बच्चे डिफरेंस पढ़ लेंगे कि बच्चे लिखवा दो, कोई बच्चा म्यूट करके बताएगा. डिफरेंस पढ़ लेंगे कि लिखवा दो. हरियर्स, नमन, लिखवा दो डिफरेंस बच्चे की तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या डिफरेंस, एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसका फर्स्ट डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चे, लिसन केयरफुली, इनके बीच में डिफरेंस आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टेम्परेरी मैग्नेट एंड ए परमानेंट मैग्नेट. तो बच्चे आपने फर्स्ट डिफरेंस लिखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स एज ए मैग्नेट. लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स एज ए मैग्नेट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट. जब हम उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, जब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. जब हम करंट बंद कर देंगे तो बच्चे अपने मैग्नेटिज्म को लॉस कर देगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज आल्सो नोन एज ए टेम्परेरी मैग्नेट. करंट के कारण मैग्नेटिज्म शो करेगा, जब करंट बंद कर दूंगा तो बच्चे वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा. इट्स योर फर्स्ट पॉइंट. अब हमने दूसरे पॉइंट परमानेंट मैग्नेट की तरफ जाना है.
तो परमानेंट मैग्नेट में ये बोलता है कि परमानेंट मैग्नेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन करंट फॉर इट्स मैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेट डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट फॉर इट्स मैग्नेटिज्म। करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बच्चे। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ, लिसन केयरफुली, द स्ट्रेंथ ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट, the strength of a magnetic field of electromagnet can be changed by the magnitude of current। मैंने अभी बताया आपको कि अगर, listen carefully, अगर करंट कम है, listen, करंट कम है तो बच्चे मैग्नेटिज्म भी कम होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो अब भी मैग्नेटिज्म कम होगा। तो इट कैन बी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब परमानेंट टेम्परेरी मैग्नेट में हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, बट इन ए परमानेंट मैग्नेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट डज नॉट बी चेंज। द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। और थर्ड पॉइंट में लिखना है आपने कि ए वेरी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो यूज करा जाता है, ट्रेन में यूज करा जाता है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज करा जाता है। इट मीन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और जो दूसरा टेम्परेरी मैग्नेट है, सॉरी परमानेंट मैग्नेट है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज वीक एज कंपेयर टू ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब कौन बताएगा मेरे को इन तीनों के डिफरेंस? अभी मैंने सुन लिया आपके तीनों सभी से, अभी सुनूंगा बच्चे, कौन बताएगा? यस बच्चे, अनम्यूट। हाँ जी बोलो। Similar. हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। So the first is that in an electromagnet, the amount of B, that means magnetic field, it depends upon current, while on the permanent magnet, it does not depend upon the amount of current. Second, in electromagnet, the magnetic field can be changed by increasing the amount of current or the number of turns, but in the permanent magnet, the amount of magnetic field cannot be changed. Third is that electromagnet is used, is having very strong magnetic field, and while the permanent magnet does not have as comparative strong magnetic field. मतलब इट हैज ए वीक मैग्नेटिक फील्ड। Weak magnetic field. हाँ, टेम्परेरी मैग्नेट इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट इज ए वीक मैग्नेट। तो ये बच्चे आज का टॉपिक था। कोई कंफ्यूजन किसी को? Question. एक मिनट बच्चे, इसके बाद हमने, हमारे पास एक रह गया टॉपिक, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें हम यू टाइप का एक मैग्नेट यूज करेंगे। और सिर्फ 3 टॉपिक हैं और हम लिसन। अब टॉपिक कौन कौन से हैं? ऊपर लेता हूं आपका क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक है फोर्स बिटवीन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फिर पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर हम पढ़ेंगे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इलेक्ट्रिक मोटर जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर डिपेंड अपॉन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के ऊपर वर्क करता है। इट मीन अब हमारे पास अप्रोक्सीमेट 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चे, हाँ अब बोलो नूपुर, नूपुर बोलो बच्चे। Sir, we read कि in permanent magnet it does not depend upon the current, but वो permanent magnet तो तभी बनता है एक बार अगर उसमें से current निकालेंगे हम लोग। हाँ So how does it not depend upon current? बच्चे मैं ये बोल रहा हूँ डिपेंडेंट। यहाँ पे जो आपका परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट टेम्परेरी मैग्नेट में मैंने क्या बोला कि इफ बी पास द करंट देन इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड, ऐसा ही बोला। तो जो आपका टेम्परेरी मैग्नेट है उसमें द परमानेंट मैग्नेट नॉट डिपेंडेंट ऑन द करंट, डिपेंडेंट, करंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है। एक आगे हम केस बताएंगे, मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा जिसमें विदाउट ए बैटरी, विदाउट, बिना बैटरी से किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करेगा विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेटिज्म। बिना सेल, बिना बैटरी से करंट प्रोड्यूस होगा, उसको आगे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ करंट, जिसमें करंट प्रोड्यूस होगा। पढ़ना है अभी हमने वो कंसेप्ट,
उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, रेबा आज बड़ी चुप चुप बैठी है, क्या हुआ? आर यू फाइन? ओके। हाँ जी तेजल, फाइन? ओके। निखिल, अंडरस्टैंड? तेजेश्वर, बच्चे समझ आ गया तेजेश्वर? ओके। नमन, अमन, नमन अमन, ओके। वानी, ओके बच्चे। एबलीन, अमित, वंशिका, रुद्रा, शुभम, भाई साहब अपनी फोटो दिखा दिया करो यार, ऐसा मत किया करो। हाँ जी नूपुर। Sir, you have given us a worksheet जिसमें in text questions के भी आंसर हैं. On the page number 230, third question is the magnetic field inside a long straight solenoid carrying current. उसमें आंसर है decreases as we move towards its end. वो अभी आपने explain कर दिया. But उसका fourth option ये भी है is same at all the points. ये भी तो है because parallel है तो constant है. हाँ जी बच्चे लिख सकते हैं, लिख सकते So हैं। which point should we choose? बच्चे मेरे को फिर असाइनमेंट देखनी पड़नी है, एक मिनट रुक। कौन सा क्वेश्चन बोल रही It's है? on NCERT question. एनसीईआरटी question. मैंने सेंड करा है आपको, सेंड Sir, करा? yes, in text question. Yes, sir. बच्चे मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम है, यू कैन सेंड मी नाउ एंड मैं आपको उसका रिवर्ट करता हूँ, भेजता हूँ आपको, ठीक है? Yes. चलो थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।